That one is known as the cell wall. विषय में discussion करिथिले and हम cell wall कौन कहिथिले जे कि होची common characteristic of shape of the outermost layer of the plant shell बोली हम कहिथिले. So जेतन कौन कहिली ना cell wall होची हमर outermost wall layer of the plant cell, but in case of the animal cell the cell wall is completely absent. Animal cell हमर कौन होची ना cell wall टा completely absent होची below to the cell wall. The next layer is known as the plasma membrane, plasma lemma or the cell membrane. Yes, so this one is a common structure which is present in both plant and animal cell, right? This is very important thing. That's why is plant in plant and animal cell both नीचे जगह cell रे कौन ही थी बोला हमें plasma lemma और plasma membrane नीचे जगह common structure रखे हमें present थी पाओ. तो इन्हें हमें कौन कोई थी लो ने जितने बड़े हमारे plant cell रो outer layer cell wall होची तो जेहेतु cell wall मोटे outer layer होची सेठी में हमें कौन कोरुचु ना plant cell मोटे particular shape देखी पालो जो it may be rectangular होची it may be hexagonal shape देखी पालो जो किंतु animal cell रो जेहेतु outer layer ही start होची हमें plasma membrane जिधे हमें question पचारे जब which one is the outer layer of the animal cell, that's one is known as the plasma membrane. So जेहेतु outer wall layer outer layer animal cell हमें plasma membrane बोले कहूचो सेति में animal cell ले कौन होची ना हमर particular shape के size हमर maintain हे करो नाही, right? So let's start our class with the structure of plasma membrane, cell membrane or plasma lemma. Suppose this one is a cell. Suppose हमें consider करो this one is a cell. Yes, plant cell जैसे को कहेंगे तो this one is known as the cell wall. Next, after the cell wall, plasma membrane is present. So, plasma membrane, plant cell है different as well. Sorry, plant cell कौन होगा outer the cell wall असिबो next to the plasma membrane असिबो. But animal cell कौन होगा direct हमरो start होगा को part रो, ने direct start होगा हमरो plasma membrane part रो structure तो start होगा. ठीक है जी? So, especially the cell membrane which is made up of lipids and proteins. Cell membrane which is made up of lipids and proteins. Lipids and proteins दीटा जगह जिससे बोले कि हमारा plasma membrane structure जोड़ा की तैयारी होते हैं and from the lipid and proteins here in case of the plasma membrane the lipids are known as the phospholipids, right? The lipids are known as the phospholipids. Why we should call that the lipids which are present inside the plasma membrane known as the phospholipids due to the presence of phosphate group, right? जेहेतु लिपिड माने कौन लिखांती the phosphate group सहित attached होइथांती सेति पे हमें कौन कहिली the phospholipids बोले कहिली because of phosphate group is attached to the lipids hence it is known as the phospholipids बोले हमें कहिली. Next जदि हम स्ट्रक्चर विषय डिस्कशन करिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो तो स्ट्रक्चर कौन कहिली दीटा पार्ट को लेके तैयारी हितो लिपिड्स और प्रोटीन्स को लेके तैयारी हितो. So first जदि हम कंसीडर करिए suppose this one is the cell, yes, cell outer part cell membrane को हम सोचे outer part रे रहबो lipids, inner part रे also lipids present रहला, right? So जदि हम phospholipid रो स्ट्रक्चर को देखिबा this one is the structure of phospholipid and specialty के डिस्कस करबा. This one is the structure of the phospholipid. Phospholipid specially made up of or contain two parts. The first part is known as the head. The second part is known as the tail. The head part which is made up of glycerol, okay, and the tail part which is in the tail part made up of fatty acids. Glycerol and phosphate. Yes, the head part is made up of glycerol and phosphate, and the tail part is made up of fatty acids. So here, जदि हमें कौन कोलेटी सेल स्ट्रक्चर करिबा see this one is the cell and the cell रो जदि हमें सेल कथा कहिबा ए पार्ट रे हमें कौन थिबो लिपिड प्रेजेंट अछि see this one is lipid, this one is lipid, this one is lipid, this one is lipid. Yes, जदि हमें एटीपी कहिबा this one is lipid, this one is lipid and also this one is lipid.
सी स्ट्रक्चर टा कोन ए अनुसार फॉर्मेशन होबा स्ट्रक्चर सेति पे हम कोन कहलु ना फॉस्फोलिपिड देखो फर्स्ट जिंस होची कोन दिस हेड पार्ट इज आल्सो नोन एज द हाइड्रोफिलिक पार्ट हेड पार्ट को कोन बोली कहलु हाइड्रोफिलिक नेचर बोली कहलु and the tail part is known as the hydrophobic. Yes, hydrophilic and hydrophobic. What is the meaning of hydrophilic and hydrophobic? Hydrophilic means कौन जो माने water loving ही खाती. Yes, जो माने water loving ही खाती जब समान को membrane cross करके water molecule जो entry करी पड़ला then they are known as the hydrophilic. Hydrophobic means कौन water hating. Yes, जो माने water hating हेतिबे they are known as the hydrophobic बोली हमें कहबा. So here जतबे हमें most of our phospholipid और structure विषय डिस्कशंस करूची देखो दीटा पार्ट को नेके हम phospholipid तैयारी होची first head part then tail part head part टा कोन कहूची हमें head part टा को हमें hydrophilic कहूची tail part टा को हमें hydrophobic कहूची hydrophilic means कोन water loving हेतिबो hydrophobic means कोन water hating हेतिबो. So here बर्तमान हम जो स्ट्रक्चर देखुची see in the structure इस स्ट्रक्चर में कौन कले हेड पार्ट कला टेल पार्ट कला सो देखो ए सब एरिया रे कौन कलो वाटर एंट्री कर परियो एरिया रे कौन करबो वाटर एंट्री करबो नाही सो हेंस the plasma membrane को also में कौन बोली कहबा it is semi solid in nature right it is semi solid in nature बोली हमें कहबा and inside the cell protoplasm is present yes यदि प्रोटोप्लाज्म हमर सेल भीतर प्रेजेंट रही नथांता देन हम सेल टू बी लिविंग कहि पनता सेल स्टेट इन नेचर बोली कहथांते राइट प्रोटोप्लाज्म प्रोसेस कोन दिस मेंटेन्स द लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल यस एंड आल्सो प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ राइट सो the plasma membrane which is semi solid in nature and also one point very important which is also amphipathic in nature. What is the meaning of amphipathic nature? What amphipathic nature meaning kona? That means due to contents of hydrophilic head and hydrophobic head and hydrophilic tail. It is known as the amphipathic in nature. Always remember the lipid and the phospholipid which is known as the amphipathic nature. So let's discuss different models which was proposed by different scientists and some models are not accepted, some models are accepted. So what is the reason behind the acceptance of that model? Let's discuss about it. Let's talk about the first model which is known as the sandwich model. Why? First thing which is sandwich model को किए propose करते हैं? Sandwich model is proposed by Danelli and Dawson. Right? Sandwich model को किए propose करते हैं? Danelli और Dawson जे के propose करते हैं. ताको कहिबा अनुसार कोन थिला ना हमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन को लेके तैयारी होची तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जे तो लिपिड एंड प्रोटीन को लेके तैयारी होची से कोन कहथिले फर्स्ट पॉइंट प्रोटीन्स are spherical in nature. Proteins are globular. What is the meaning of globular? Globular means spherical in nature. Okay. So they come with the proteins are known as not only globular, also alpha globular. Okay. So come with the proteins माने होचंती जो माने हमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भीतर प्रोटीन्स रहउचंती it is alpha globular in nature. Okay, or other meaning of globular means to make spherical nature. Let's draw some concept देखिबा. See, this one is known as the structure of the structure देखिबा. केमती से propose करथिले कि spherical nature रो proteins जो माने के फॉस्फोलिपिड बाहर प्रेजेंट होचंती हेंस ताको मॉडल अनुसार से कोन कहले प्रोटीन्स माने होचंती स्फेरिकल इन नेचर बोली कहले यस सेकंड थिंग से कोन कहले ना जो भी एक्चुअली जो भी जिंस हम रहउची सी हमें तो हमको वेरी क्लियरली स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस होची कोन ना देखो हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल. Hydrophobic tails are facing with each other. Yes, hydrophobic tails को
with each other. Yes, hydrophobic tails come away from each other, right? So hydrophilic tails যেহেতু facing with each other সেମାନଙ୍କ ভিতরে কোন হইছে van der Waals force means weak force of attraction, weak force of attraction between them, right? Weak force of attraction, or you can say it also van der Waals force, right? Van der Waals force or weak force of attraction between the two tails of lipids. जेटा लेयर जो लिपिड रो प्रेजेंट अछंती सेमानक भितरे very weak force of attraction अछि और van der Waals force बोले हम कोठी जाको. नेक्स्ट से कोन कहली हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक जोटा कि टेल पार्ट बोली कोछि जो माने होछि वाटर लविंग. सो फर्स्ट थिंग होछि जेतला हम सैंडविच मॉडल को कहले सैंडविच मॉडल हमर एक्सेप्ट हेतिला ना नाही. जदि एक्सेप्ट हेतिला कोन पे हेतिला जदि एक्सेप्ट हे नथिला कोन पे हेतिला फर्स्ट रीजन देखिबा. सेकंड चीज से माने कोन कहली दे आर amphipathic nature. What is the meaning of amphipathic nature? Amphipathic nature means होछि कोन जो hydrophobic due to the presence of hydrophilic head and the hydrophobic tail, hence they are known as the amphipathic in nature. So third thing कोन हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जदि को स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करने में चाहू छी तर बेसिक प्रॉपर्टी होछि कोन कि स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोटा कि वाटर एंड फैट सॉल्युबल हबा दरकार. This one is the first property. Yes. Second property kono? Second property hochi the ratio in between the plasma membrane, the ratio in between the phospholipid and protein should be very. Yes, ratio जोटा कि ऑर्गन का होगा दरकार. जदि फॉस्फोलिपिड गोटे पर्टिकुलर स्पेस रे 5 नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड जदि प्रेजेंट अछि तो प्रोटीन शुड बी 4, प्रोटीन शुड बी 3, प्रोटीन शुड बी 7. निश्चित भाव नंबर वेरिएबल होगा दरकार. देन हम सेटा कहता कि दिस वन इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? थर्ड, इट मेंटेन द डायनामिक नेचर or the fluidic nature. It maintains the dynamic nature or the fluidic nature. एते जिंस हेले हम कोन कहि परबो तीनटा जको प्रॉपर्टी जदि हम गोटे स्ट्रक्चर भीतर देखिया को पाइबा अकॉर्डिंग टू एनी साइंटिस्ट, ओके, देन हम कोन कहि परबो कि दिस वन इज द एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो हमर साइंटिस्ट जो कहले डेविड एंड टैक्सम जो कहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विषय से फर्स्ट प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करले. दैट्स द रीजन ऑफ द वाटर एंड फैट सॉल्युबल. वाटर एंड फैट सॉल्युबल से कोन कहले कि जेहेतु प्रोटीन वाटर एंट्री तो करि छिबो देन कि तबे आसी कि वाटर पहुंचिबो हाइड्रोफिलिक हेड पाखरे सेली कोन वाटर कैन इजीली एंटर बिकॉज़ इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वाटर लविंग नेचर. बट बिकॉज़ टेल रीजन आसी कि वाटर पहुंचिबो कैन इट एंटर टू द एंटायर मेम्ब्रेन एंटर कर परिबो ना बिकॉज़ इट इज वाटर हेडिंग. टेल पर्सन जोटा रहउची से माने समस्त हेले कोन वाटर हेडिंग. तो जेहेतु से माने समस्त हेले वाटर हेडिंग तो केबे वाटर में एंट्री कर परिबो नाही. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी रे से फेलियर हे जाय दिले किंतु आमे एटी कहि परिबे जे जेतु से फर्स्ट प्रॉपर्टी रे फेलियर हे जाइले वाटर केमती एंट्री करूची से इंट्रोड्यूस करि नथिले प्रपोज करि पर नथिले बाकी कि तकर अदर व्यूज जोड़ा थिला कि अल्फा ग्लोबुलर इन नेचर एम्फिपैथिक इन नेचर अदर व्यूज आर करेक्ट किंतु से कहि पर नथिले जे वाटर रे भीतर एंट्री करूची कि करूनी जदि करूची कोन पे करूनी जदि करूनी कोन पे करूनी, राइट? नेक्स्ट, रेशियो इन बिटवीन द phospholipid and protein should be very. Yes, the phospholipid और protein दी जण जाक भितरे रेशियो निहाती भाबरे अलगा आसीबा दरकार. जदि अलगा न आसला देन इट इज नॉट ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मूवेबल. यस, एटा कि मूव भी करूची. यस, सो दैट तो से इंट्रोड्यूस कोन कले जेतो से कोन कले सपोज से किछि पार्ट पढि नेले मने कर सपोज से इंट्रो की पार्ट नै चंती हैला. तो एटी की पार्ट नेला परे 1 2 3 4 देखिबा हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर देयर. एटी देखो प्रोटीन्स केतरा मिलला पर्टिकुलर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पार्ट नेले. सो हाउ मेनी प्रोटीन्स आर देयर एंड मिलला केतरा 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ प्रोटीन्स, राइट? phospholipid कितना मिला 1 2 3 4 5 6 8 is to 6. Yes, so it is from protein is to phospholipid. Yes, protein is to phospholipid ro ratio को सीखी है. So that's a
protein is to phospholipid ratio को लेते से तो 80 to 6 तो रेशियो को कहले किंतु सेटा इंट्रोड्यूस करलेनी कि जतले ये मूव करबो रेशियो तो चेंजेस आसीबो ना सेटा को से इंट्रोड्यूस करि पाले नाही सो दैट प्रपोज्ड सैंडविच मॉडल जोटा के हमरा एक्सेप्ट हे नथिला राइट जति तक अदर व्यूज करेक्ट थिला किंतु जतले से इंट्रोड्यूस करि पाले नथिले कि काहे कि हमरो वाटर एंट्री करि पाले आ फैटी एसिड्स रहला फैट सॉल्युबल फैटी एसिड्स जेहेतु प्रेजेंट रहउची फैटी एसिड्स को लेके तयारी होची हमर लिपिड्स तो फैट वेरी इजीली एंट्री करि पाले फैट सॉल्युबल किंतु से जति इंट्रोड्यूस करि पाले नथिले कि काहे कि वाटर एंट्री करूनी काहे कि रेशियोटा वेरी आसुची सो जेहेतु रेशियो से वेरी आसुची फर्स्ट किछि पोर्शन ने कि भी इंट्रोड्यूस करिथिले जदिओ सेठी से कोन नथिले इट इज मूवेबल यस मैथमेटिकली इज मूवेबल सो से कहि पार नथिले सेति ताको मॉडल एक्सेप्टेड हे नथिला नेक्स्ट मॉडल हम आसला कोन द नेक्स्ट मॉडल इज नोन एज द नेक्स्ट मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन प्रपोज करथिले कोन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मींस जहां सैंडविच मॉडल के पॉइंट्स किछ थिला ताहा तो किछ सेम पॉइंट्स मैच करूथिला रेस्ट से किछ एक्स्ट्रा जिंस कोन कहले जो प्रोटीन ता हम सैंडविच मॉडल में कहथिले कोन अल्फा ग्लोबुलर और स्फेरिकल प्रोटीन बोली कहथिले सीट कोन कहले द प्रोटीन इज नोन एज द beta fibrous protein means kono the structure of protein which look thread like structure right जे कि thread परि के structure हेतिबो सेति पय से कोन कहले beta fibrous protein बोली कहले next plasma membrane plasma phospholipid is antipathic means kono due to the presence of both hydrophilic head and hydrophobic tail same as sandwich model किछि कांसेप्ट थिला तो से कांसेप्ट अनुसार से कोन कहले सेम किछि कांसेप्ट से तनो देखले नेक्स्ट जोटा के इंट्रोड्यूस करने हम सैंडविच मॉडल है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इट इज एक्स्ट्रा जिंस कोन इंट्रोड्यूस करथले 75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम थिकनेस सो लेट्स स्ट्रक्चर देखिबा हैला तो थ्रेड लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थिला देन थ्रेड लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सहित दुगो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो माने के प्रेजेंट थिले आल्सो जहां को भी बाई लेयर बोली से कहथिले सी दिस इज द स्ट्रक्चर thread like structure protein and same mineral attachment इतले कोन and same mineral पूरा attachment इतले the structure of the और चले so same mineral attachment इतले हमर कोन thread like protein जो के attachment इतले so हमर फर्स्ट प्रॉपर्टी कोन अछि फर्स्ट प्रॉपर्टी जेटा कि वाटर एंड फैट सॉल्युबल होबा दरकार सो एटी देखिना से प्रूफ करि परथिले कि नै whether it is water or fat soluble से प्रूफ करि परथिले कि नै तो फर्स्ट के वाटर सॉल्युबल से कहिथिले कि नै वाटर प्रोटीन देखि तो वाटर एंट्री करि जिवो राइट इज दैट राइट देन नेक्स्ट असला हाइड्रोफिलिक टेल भी एंट्री करि जिवो बिकॉज़ हाइड्रोफिलिक इज वाटर लविंग नेक्स्ट आसीबो हाइड्रोफोबिक सो हाइड्रोफोबिक ता कोन प्योरली वाटर हिटिंग हाइड्रोफोबिक एंट्री करि पाला नाही तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही से कोन हितले रिजेक्ट हे जैतिले जदियो तक दिस व्यूज आर करेक्टेड ए व्यूज तर जति तक करेक्ट थिला किंतु से प्रूफ करि पाले नथिले कि वेदर इट इज काहे केटा वाटर सॉल्युबल होनी जदी सॉल्युबल होची व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट राइट नेक्स्ट फैट सॉल्युबल ऑब्वियसली प्रोटीन अछि फैट सॉल्युबल हे पाइबो देन हाइड्रोफोबिक जोटा कि फैटी एसिड्स हम प्रेजेंट होचती हाइड्रोफोबिक हेले भी हाइड्रोफोबिक टू जोटा कि फैटी एसिड्स को लेके तयारी होची हेल्स इट कैन फैट सॉल्युबल भी हे पाइबो राइट सो द्वितीय जिंस होची कोन से देखिले कोन ना प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड मान को रेशियो शुड बी वेरी प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन रो रेशियो जोटा कि वेरी करबा निहाती दरकार किंतु जतले प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड रेशियो को देखिया को चाहिए इट इज द सेम आफ्टर द सैंडविच मॉडल से भी प्रपोज करि पार नथिले कि काहे कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड रो रेशियो वेरी करबो हेंस दिस पॉइंट ऑफ व्यू रॉबर्टसन तांकर मॉडल जोटा कि भी एक्सेप्टेड हे नथिला दैट वन इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो नेक्स्ट मॉडल विल कम so next model is known as fluid mosaic model of plasma membrane. What is the fluid mosaic model of plasma membrane, which is very important and which is mostly accepted
comparatively to unit membrane model and Sandwich model जदि दुई जण जाक मॉडल रे कोन हेतिला ना सब जाक व्यूज जदि एक्सेप्टेड थिला बट सेबले प्रॉपर्टीज माने को प्रूफ करि पारि नथले कि वेदर काहे कि वाटर एंट्री करि पारुनी काहे कि दे आर नॉट डायनामिक इन नेचर यस सो it is a fluid mosaic model देखिले fluid mosaic model propose की करते Singer and Nicholson in the year 1972 very important plasma membrane is made up of proteins and phospholipids as that of previous views करेंगे ये भी सेम जिंस एटी दी जण साइंटिस्ट कोन कहले कि प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स को लेके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटे तैयारी होची and the proteins are alpha globular or otherwise we can say it also as spherical proteins बोले भी हमें कहि परबा the shape is spherical in nature hence it is called the alpha globular protein बोले भी हमें कहि परबा किंतु जो जिसटा हम सैंडविच मॉडल रे कहिथिले कोन ना प्रोटीन्स माने होचोदी अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स बोले कहिथिले किंतु सेठी से इंट्रोड्यूस करि नथिले जे two types of proteins are there किंतु एट Singer and Nicholson introduce कोन करले two types of proteins are there okay the first one is known as the extrinsic protein and the second one is known as the intrinsic protein what is extrinsic what is intrinsic यदि वो डायरेक्टली डेफिनेशंस को पढ़ा बहुत तरह डाउट कंफ्यूज हो जावे extrinsic means outside the membrane right outside the membrane those proteins are present they are known as the extrinsic inside the membrane those proteins are present they are known as the intrinsic inside the membrane inside the structure plasma membrane structure भितर जो proteins गुडी को आसुचंती ताको में कहबा intrinsic protein extrinsic means outside right so extrinsic also तमे कहबे परिबो attached to phospholipid heads very loosely if phospholipid head जदि अछि heads बाहर हम रखिबो कोन extrinsic protein intrinsic protein कोन हो completely embedded yes this one जोटा केवल within the structure of phospholipids भितर आसीबो that one is known as the intrinsic protein बोले हमें कहबा third जिंस से next one कोन कहली movement of phospholipids see this one movement of phospholipid is two types of movement जोटा कि हमको phospholipids देखियो करते first movement is known as the transition movement what is transition movement ठीक है देखिए transition movement ର meaning कोन see suppose this is the structure suppose this one is the structure of phospholipids and also हमें already पढ़े भी सारे कि phospholipid रो head गुडा को opposite direction में खाती tail गुडा को facing towards each other right see these are known as the tails of the phospholipids these are the heads of the phospholipids head और tail देखो कैसे हमारे arrangement है चलती so series of the movement of phospholipids these are the structure of phospholipid most of our lactic रो ही कोन कहले जदि हमरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव न करबो एंड तमे से केबे तो कहि परबे इट इज ए सेमी लिक्विड इन नेचर और सेमी परमेबल इन नेचर कहि परबनी जदि से मूव न कला दैट मींस कोन रिजिड सरफेस सो रिजिड केबे भी डायनामिक हे परबनी इट इज इम्पॉसिबल सो एटी कोन कहले न देखो फर्स्ट लेयर आसी सेकंड लेयर आसी ऊपर प्रोटीन गुडा को प्रेजेंट अछंती हम ड्राइंग करूनी तळे भी प्रोटीन प्रेजेंट अछंती राइट सो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन अब एमती भी इंट्रोड्यूस कर परबा जति कोन हो ना ट्रांजिशन मूवमेंट फॉस्फोलिपिड रो मूवमेंट को बुझिया वर्तमान जाउ छे सो ट्रांजिशन मूवमेंट मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन मूवमेंट मींस गोटे लाइन भीतर सिंगल लाइन भीतर फॉस्फोलिपिड सिंगल लाइन भीतर मूव करिला यस दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज ट्रांजिशन मूवमेंट माने केवल लाइन नंबर 2 रे मूवमेंट हैला दिस वन इज ट्रांजिशन मूवमेंट जदि केवल लाइन नंबर 1 भीतर मूवमेंट है दिस वन इज आल्सो नोन एज द ट्रांजिशन मूवमेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मींस होची कोन ना जदि फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट लाइन को किछि फॉस्फोलिपिड्स आसे सेकंड लाइन में फर्स्ट लाइन को किछि फॉस्फोलिपिड्स छिपे राइट सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हेंस दुई प्रकार मूवमेंट हमको एटी देखिया मिलला फॉस्फोलिपिड रो कोन फर्स्ट होची ट्रांजिशन मूवमेंट सेकंड वन होची कोन ना फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोली हम कहले तो मोस्ट ऑफ आवर कहबो गले कोन देखो यदि हम फॉस्फोलिपिड प्रोटीन दीटा जक स्ट्रक्चर को नेक रे यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयारी होची तबे से कोन हमरा both complete structure be movable right hence it is first third property we introduce the con कर देले it is known as the dynamic in nature okay it is known as dynamic nature what is the meaning of dynamic किछि भी हमें बुझी पाना दे what is the meaning of dynamic means fluidity in nature again what is the meaning of fluidity
हमें पूरी तरह वाटर को सिंप्लीफाई कर परिबा फ्लूइडिटी मींस वाटर सरफेस ऊपर आइस जदी फ्लोट करिवो यस दैट्स व्हाट इज नोन एज द फ्लूइडिटी नेचर सो लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होची कोन डायनामिक नेचर और फ्लूइडिटी नेचर जे कंटिन्यू कला नेक्स्ट वन होची फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें कोन कहि दिले प्रीवियस concept रे water and fat soluble होबा दरकार जदी water and fat soluble हबो then it will obey the first property water soluble केमती हो sorry for fat soluble तो ऑलरेडी हम डेटा जको प्रॉपर्टीज डेटा जको मॉडल देखि सारे जे how it will give to fat soluble but water soluble केमती हबो देखो हेड पार्ट देखि त हम वाटर एंट्री करि गला बट जेतले हेड पार्ट देखि हम वाटर एंट्री करि जाउची एबे गोटे दिन सब तो बिफोर कोन कहली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन राइट इंट्रिंसिक प्रोटीन जे की कोन करूची हमरो फॉस्फोलिपिड बिटवीन प्रेजेंट होची yes protein is water soluble but the hydrophobic tails are not water soluble किंतु हमको hydrophobic tails in दरकार नहीं due to the presence of intrinsic protein so through the intrinsic protein water comes to the plasma membrane right so जोटा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हमरा इंट्रोड्यूस हे गला दैट टू बी कोन इट इज बोथ वाटर एंड फैट सॉल्युबल राइट इट इज बोथ वाटर एंड फैट सॉल्युबल थर्ड प्रॉपर्टी में कहि दिले डायनामिक नेचर जोटा हम प्रीवियसली लिखिथिली फर्स्ट प्रॉपर्टी वाटर एंड फैट सॉल्युबल सेकंड प्रॉपर्टी कहिथिली फॉस्फोलिपिड प्रोटीन रो रेशियोटा वेरी करबा दरकार थर्ड प्रॉपर्टी में कहिथिली डायनामिक नेचर तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमरे लिखि गला फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हे गला सेकंड प्रॉपर्टी कोन सेकंड प्रॉपर्टी होची प्रोटीन and phospholipid ratio should be vary करिबा दरकार राइट तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड रेशियो वेरी करिबा वेरी क्लियरली आपको देखने अछि यदि हम प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड रेशियो सपोज यदि करबे कि 4:6 अछि सो वेरी करिबा काहे कि वेरी करिबा बिकॉज़ ऑलरेडी हम जानि सारली जे फॉस्फोलिपिड जे की मूवमेंट करूछि दीटा वेरी फर्स्ट वे होछि ट्रांजिशन मूवमेंट सेकंड वे होछि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट तो से मूव करला माने निहाती भाबरे तो रेशियो तो वेरी करिबा ना किंतु प्रीवियसली हम कोन देखिथिले गोटे पार्ट नेकी देखिथिले कि दैट टू बी सेठी भी हम रेशियो वेरी करूछि बोले हम गोटे पार्ट नेकी देखिथिले किंतु सेठी हमको प्रूफ करि पानथले कि दे आर मूवेबल यस तो सेठी जेतु प्रूफ हेई पानथला कि दे आर मूवेबल एटी प्रूफ हेई पाला कोन कि दे आर मूवेबल यस तो एटी जेतु प्रूफ हेई पारिला कि दे आर मूवेबल सो दैट हम एटी कोन कहले कि मेंटेन भी हेई पारिबो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड रेशियो जेटा कि वेरी ही करिवो कि भी एग्जैक्ट और सेम रेशियो आसीबे नाही so the three number of properties are obey in that model जेतु तीनटा जको प्रॉपर्टी है मॉडल में क्लियरली इंट्रोड्यूस हैला सेति में the fluid mosaic model of plasma membrane which is getting accepted yes the last two models are not accepted one is unit membrane model and the second one is known as Sandwich model and almost both people ने पछन very interesting topic both people ने पछन मैडम Sandwich model काहे कि ना देले because it is known as the bilayer right आमे देखो साइंटिस्ट दला सॉरी इट इज नोन एज द बाइलेयर यस बाइलेयर मींस कोन हम सैंडविच खाइतिबो राइट कि खाइ को बहुत टेस्टी भी लगे तो सैंडविच कोन हिते ऊपर पार्ट जेमती तळ लोअर पार्ट में सेम दिते मिडिल ला सेम हिते राइट लाइक दैट तुम सैंडविच मॉडल में से काहे कि कहले ऊपर रहला प्रोटीन मझे रहला कोन फॉस्फोलिपिड नेक्स्ट तळ पार्ट रहला प्रोटीन लोअर पार्ट रे प्रोटीन रहला तो जेतो से स्ट्रक्चर को देखिले कि सैंडविच मॉडल को हमर जो प्रपोज करा हेतिला तो उसतो सैंडविच मॉडल स्ट्रक्चर को देखिथिले सेतो से कोन कहथिला जो हमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर व्हिच लुक्स लाइक ए सैंडविच मॉडल सेतबे ता ना दियला सैंडविच सॉरी सैंडविच परि के देखा जाउतला सेतबे ताको ना दियला कोन सैंडविच मॉडल so the two models are not accepted the third model is accepted which was proposed by Singer and Nicholson and the plasma membrane which is known as the semi liquid in nature and also the semi permeable in nature which is present in both plant cell and the animal cell so that plant animal cell outer layer जो तो plasma membrane हिते सेति में plant animal cell have no definite shape किंतु plasma membrane outer covering के हिते plant cell wall सेति में plant cell में definite shape present है next class we will discuss more and more thanks for watching my video